Hello kids, what's up? Welcome back to your favorite channel Vigyan Prasasti. This is me, Vijay. Will take your class today and I will explain in this class the most fundamental concepts like electronegativity, like metallic character, like non-metallic character, like the characteristic of the group 1 elements, like the important characteristic of the group 17 elements. Like I will explain their chemistry, I will explain their important chemical reactions and their physical properties. So guys, let's start our journey, let's start our lessons. So I hope all of you are serious and all of you are seated with your pen and paper. So guys, all of you are sitting with your pen and paper. Okay, so let's start. So guys, in the first video, those who have not watched my first video, please go and watch the whole video, as because there I have explained all the concepts, all the related concepts in your first chapter, that is the periodic table and its variations and the properties and its variations. So guys, as you know that concept clarity is more important, the first priority that you should give in your concept clarity section rather than any other things. Okay guys, so once you have cleared your concept, you should boost up our confidence so that any type of questions that will appear in your exam, you can fight with them very confidently. Okay guys, so no, we should start our class today. So as you know that we are going through the chapter the periodic table and its properties and its variations. So guys, in the first lectures I have explained the some concept on the periodic table, what like this, what are the periods, what are the groups, like this, how period and groups, like they are called, like one periods are called like horizontal lines and the groups are called like uh, vertical columns, right? And how the elements are arranged like this. So total 18 groups are there and 7 periods are there. So guys, in this video I will explain the electronegativity in the first few minutes. After that I will explain the metallic character, non-metallic character, like this. So many things in this video I have to explain. So those who have cleared the concept on the atomic radius, right, and the ionization potential, I hope these concepts will help you guys to understand the remaining topics in your chapter. So let's start without any delay. We should start our class. So everyone should make the heading here electronegativity. Okay, just one thing, I want to give you a question. Okay, so let's start our class with a question like this. So as as you know that guys, Na and Na plus. Now tell me, now tell me which one has a more atomic size. Okay, so these two are atoms. You know that sodium atom and this is the Na plus. Na plus. Okay, now tell me which one has the more atomic radius. किसके पास जो है atomic radius ज्यादा होंगे, और which one has the more size. Okay, so now let me explain. If you know the answer, then switch off the video and try to solve the questions, try to give the answer. So guys, here it is 11 number of atoms, 11 number of atomic number is 11 here, and here also the atomic number is 11, and because both are sodium atoms, so their protons number should be same, that is 11. Now what happens in case of sodium? There are 11 protons as well as guys there are 11 electrons. Now what happens in case of sodium atoms? What happens in case of sodium cations? So guys, here number of protons is same, that is 11, but what happens if you calculate the number of electrons? So there should be one electrons less than compared to this sodium atom. So number of electrons in this sodium plus cation, this is 10. Now tell me in which section, in which part there are more electrons, and you know more electrons, here more electrons is present and here less electron is present. So as we know that electronic configuration is based on the number of electrons, so here electronic configuration is 2e
1 and here is 2 and 8. Now both have the nucleus. Both have the nucleus. Here it has the nucleus, and sodium atom, sodium ions also has the nucleus. Now tell me one thing. Here in the nucleus 11 protons are present. Here also the number of protons is 11. Now guys, what happens? Here 11 protons are against the 11 electrons, right? 11 protons are against the 11 electrons. So the effective nuclear charge, if you talking about the effective nuclear charge here, and if you talking about the effective nuclear charge here, so there should be a difference in the effective nuclear charge between, or you can say the attraction between the electrons and the nucleus. Okay, so as you know that here 11 protons are present and 10 electrons are present, guys, as because you have eliminated one electrons from this sodium atom, so that sodium ions has been formed. Now as you compare the electron and the nucleus, the attraction between the electron and nucleus, here it is less electrons, less attraction. Here you will find the less attraction, but here, as because the effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, so that there is a repulsion, there is a strong attraction between the nucleus and the electrons. Okay, or you can say there is a strong attraction between the electrons and the nuclear charge. So what happens? The orbitals come close to the nucleus. And as a result, what happens? The size is atomic size is reduces. Okay, so this neutral sodium atom has the more atomic radius as compared to the sodium plus. I hope all of you are getting my point. ओके गाइस, सबको समझ में आया क्या बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से जो अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन से, राइट, 1 प्रोटॉन इज टू 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ हियर 11 protons is present, but in respect of these sodium atoms there are 1 electrons less present. Okay, number of electrons is 10 here, so the effective attraction between the electrons, okay, and the nucleus is more in case of the sodium plus ions. That's why the atomic size decreases here. Okay, so size of the sodium plus ion is less as compared to the sodium atom. I hope you have got my point. So we should move the next topic, that is electron affinity. So first of all, you should make a heading of electron affinity. Now electron affinity. Now what is electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? देखो क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लेट्स डिस्कस. सो यू हैव अ एटम, एज फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव क्लोरीन एटम. ठीक है, क्लोरीन एटम है आपके पास, एंड यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, दैट इज 17. क्या है एटॉमिक नंबर? 17. एंड इफ यू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस chlorine atom, so here 2 electrons present in the K cell and 8 electrons is present in the L cell. Okay, and the 7 electrons are present in the M cell. समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so K cell 2 electrons, L cell 8 electrons and M cell 7 electrons are present. Now what happens if you want to add 1 electron in its valence shell? Now if you add 1 electron in the valence shell, so what happens if you want to add 1 electron in the valence shell? So what happens? 1 electron you are adding in the valence shell, so 1 more electrons will be present
one more electron will be present, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so one electron, 3 4 5 6 7 8. So these electrons you have added, this electron you have added. Now this was Cl atom, now this is Cl minus ion. Okay, this is an anion. So क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ कि एक Cl एटम था, उसमें क्या किए हम, एक इलेक्ट्रॉन्स को डाले, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किए। कहां ऐड किया कि इस एटम में ऐड किया गया है, और उस एटम में कहां ऐड होगा ना, उसमें जो बाहर का जो सेल है, एकदम वैलेंस सेल है, ये जो वैलेंस सेल है गाइस, इस वैलेंस सेल में जो है ये ऐड होगा। समझ में आया? सो द इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड ऑन द आउटर मोस्ट सेल, दैट इज द वैलेंस सेल। क्लियर हुआ? यहां पर ऐड हुआ है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया गया है, जो डाला गया है। नाउ इन दिस ओवरऑल प्रोसेस व्हाट हैपेंस कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है गाइस यहाँ पर रिलीज होता है, कुछ एनर्जी जो है इसमें इस प्रोसेस से बनता है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया सभी को? दिस एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? सो क्या होता है कि एक न्यूट्रल गैसियस एटॉम रहता है, एंड उस न्यूट्रल गैसियस एटॉम, तो ये क्या है आपका, ये है आपका न्यूट्रल गैसियस एंड आइसोलेटेड। ओके, इट शुड बी आइसोलेटेड। So neutral, gaseous and isolated. What happened? You are adding one electrons, एक electrons को add कर रहे हैं, and it becomes X minus gaseous, तो एक anion form हो रहा है दोस्तों। And इस प्रोसेस में जो जितना इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ आप लोग। अब क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसे पीरियोडिक टेबल में वेरी करते हैं, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैसे होगा, पीरियड में अगर जाएंगे तो कैसे होगा, और कुछ बेसिक चीज जो है किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनो जो भी बात बता रहे हैं हम। सो दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज। ये तो बात सही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी होंगे दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ना, एटॉमिक साइज के ऊपर क्या होंगे, डिपेंड करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ऊपर क्या करेंगे, ये डिपेंड करेंगे। अब देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर हम लोग एटॉमिक साइज देखें, तो मान लो एक एटॉम है जिसका एटॉमिक साइज ये है, और एक एटॉम है जिसका एटॉमिक साइज ये है। समझ में आया? अब देखो मान के चलो ये आपका न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखो ये बाहर का सेल है, मान के चलो ये बाहर का सेल है, तो बाहर का सेल में रहने वाला जो, मान के चलो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का चार्ज या साइज कम है, तो क्या होगा, इसमें इस वैलेंस सेल में न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ, सोच के बताओ कि यहाँ पर साइज क्या है, छोटा है, और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बहुत नजदीक है। मतलब आउटर सेल जो वैलेंस सेल है दोस्तों, इस वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो है दूरी जो है दोस्तों, ये दूरी बहुत कम है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो ज्यादा रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स अगर आने की कोशिश करे तो वो बहुत अच्छे से आ सकता है वहां पर, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींचेंगे और वो प्रोसेस आसान हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर आने के लिए क्या होगा, ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस फेवरेबल होगा यहाँ पर, और बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होंगे। समझ में आया कि नहीं है, बताओ। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है कि न्यूक्लियस चाहता है कि वो आए वहां पर,
क्योंकि न्यूक्लियस उस वैलेंस शेल में जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को डाला जा रहा है दोस्तों, उसमें क्या है कि उसका न्यूक्लियस का प्रभाव है, तो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जल्दी बहुत आसान तरीके से आके बैठ सकता है, अच्छे से होल्ड कर सकता है वहां पर। समझ में आया? अब दोस्तों यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने वाला है, और ये जो है दोस्तों ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है आपका। ये क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस है जो कि एक एटम में रहता है दोस्तों। अब क्या है कि ये दूरी बहुत है, ये दूरी बहुत है, तो दूरी बहुत है मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब इस जो वैलेंस शेल है वहां पर न्यूक्लियस का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो एक इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है दोस्तों? ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये आएंगे वहां पर और बैठेंगे, तो यहाँ पर वो उतना ज्यादा क्या है इंटरेक्शन फील नहीं कर रहा है कि वहां पर आके बैठे, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर है और वहां जहां पर आने वाला है जिस वैलेंस शेल में, वो उसका दूरी थोड़ा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वो उतना आसानी से नहीं आना चाहेंगे, तो यहाँ पर उतना ज्यादा एनर्जी जो है दोस्तों ये रिलीज नहीं करेंगे, ये लेस एनर्जी जो है दोस्तों यहाँ पर रिलीज करेंगे। समझ में आया? बात पल्ले पड़ा, बात भेजे में गया, समझ में आया? ओके, तो देखो एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है कि एटॉमिक साइज दोस्तों छोटा हो रहा है तो बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में आके बैठ सकता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में एक ताबड़तोड़ अट्रैक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर जो है दोस्तों साइज बड़ा होने का कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है, तो वो आने का चांसेस भी उसका उतना अच्छे से नहीं रहेगा, तो लेस एनर्जी जो है दोस्तों यहाँ पर रिलीज होंगे। ओके, तो क्या हुआ, मोटी मोटी तौर पे ये चीज हम लोग बता सकते हैं कि एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, एक इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छे से वहां पर मतलब वैलेंस शेल में आके बैठ सकता है और एनायन जो है बना सकता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करेंगे। ये तो सच बात है एकदम, बहुत अच्छे से सर समझ गए हम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है दोस्तों वो बढ़ जाएंगे। ओके, अब और क्या चीज है, और क्या चीज है जिसमें जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिपेंड करता है दोस्तों, और क्या चीज है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है? तो सर जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। देखो दोस्तों क्या है कि और है दोस्तों न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा सर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बता दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों क्या होता है कि एक न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है भाई, एक न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ओके, तो न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज मान लो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो हम दो चीज लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज आपका 5 है और यहाँ पर मान लो न्यूक्लियर चार्ज 7 है। अब बताओ आप लोग कि कहाँ जो है, मान के चलो यह 6 है और यहाँ 7 है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसकी जो न्यूक्लियस है दोस्तों यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स है और यहाँ पर क्या है 7 प्रोटॉन्स है। ओके, समझ में आया? तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा होंगे और इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन मतलब ज्यादा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होंगे। इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, प्रोटॉन्स नंबर कम है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या डिपेंड करते हैं, कैसे, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर आता है, तो अगर चार्ज ज्यादा होगा, केंद्र में अगर चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो उतना ही तेजी से इसको क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है तो इस न्यूक्लियस में चार्ज कम है, तो इसी वजह से ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो उतना अच्छा फोर्स फील नहीं करेंगे और न्यूक्लियस उसको उतना अच्छे से अपने तरफ नहीं खींचेंगे कि तुम यहाँ पर आ जाओ और वैलेंस शेल में बैठ जाओ और एनायन फॉर्म कर दो, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज कम है। तो क्या समझ में आया दोस्तों यहाँ से कि न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों जितना बढ़ेंगे,
ध्यान से समझो, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ना, बढ़ जाएंगे। तो दो चीज तो आप लोगों को समझा दिए, एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेंगे और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कैसे डिपेंडेंसी रहेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखेंगे दोस्तों वेरिएशंस। अब देखेंगे दोस्तों वेरिएशंस की वेरिएशंस मतलब क्या होता है सर, कि देखो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करता है अगर कोई जो है डाउन द ग्रुप आएंगे तो, और अराउंड द पीरियड मूव करेंगे तो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे वेरिएशन, तो ग्रुप के बराबर अगर जाएंगे दोस्तों, ग्रुप के बराबर, ठीक है, तो ग्रुप वाइज वेरिएशन क्या होगा, ग्रुप वाइज वेरिएशन देखो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मान के चलो क्या कोई जो है टॉप टू बॉटम जा रहा है, टॉप टू जो है बॉटम जा रहा है दोस्तों, तो क्या होगा, साइज बढ़ेंगे कि नहीं बताओ, साइज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर दो चीज होंगे, साइज बढ़ेंगे तो दो चीज होंगे, क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज भी तो सर बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेंगे, और दोस्तों साइज भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज जो बढ़ने वाला जो प्रॉपर्टी है, साइज जो बढ़ने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होंगे। इससे इसके मुताबिक ये फैक्टर प्रीडोमिनेंट होगा दोस्तों, ये प्रीडोमिनेंट होंगे, प्रीडोमिनेंट, ये क्या होगा, ये प्रीडोमिनेंट होगा। इसी वजह से साइज बढ़ना जो है उसको, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो साइज अगर बढ़ता है दोस्तों तो क्या होगा, साइज अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली साइज बढ़ रहा है तो, या दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है ना, जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे आके वो दूरी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा फोर्स नहीं फील करेंगे और न्यूक्लियस जो है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छे से होल्ड नहीं कर रख के पाएंगे, मतलब कर न्यूक्लियस को उतना अच्छे से खींच नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो घट जाएंगे। तो टॉप टू डाउन क्या होगा दोस्तों, टॉप टू डाउन और डाउन द ग्रुप, यू कैन से कि डाउन द ग्रुप जो है, डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर हुआ बात, पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ। ठीक है, अब देखो क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि सर अगर हम लोग पीरियड वाइज जाएंगे तो क्या होगा, देखो देखो पीरियड वाइज जाएंगे तो क्या होगा, तो अलोंग द पीरियड अगर बात करें दोस्तों, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड अगर बात करें, अगर कोई जो है मान के चलो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज जो है दोस्तों वो घटता हुआ क्रम में आएंगे, साइज जो है घटता हुआ क्रम में आएंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। समझ में आया, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स फील करेंगे वहां पर आने के लिए, वो वैलेंस सेल में रहने के लिए ज्यादा मतलब फोर्स फील करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर आएंगे बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर एनर्जी भी जो है ये ज्यादा रिलीज करेंगे, अर्थात अगर कोई जो है अलोंग द पीरियड जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। तो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएंगे अगर कोई लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो, और उसके पीछे जो भी कारण है आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि दोस्तों क्या होगा कि साइज घटता हुआ क्रम में आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सेल जो है कांस्टेंट है लेकिन बाहर में रहने वाला जो वैलेंस सेल है उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें मान लो कि सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसा करके। सो दोस्तों अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना,
हाँ, दिखाई दे रहा है पूरा एकदम अच्छे से। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, और देखेंगे कि हम लोग थर्ड पीरियड में क्या होगा दोस्तों, थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस हिसाब से बढ़ रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ बात? कोई भी ग्रुप लेके आप लोग देख सकते हो, कोई भी पीरियड लेके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, बहुत अच्छे से समझा दिए। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पर डील करना है अच्छे से। क्या सर, क्या एक्सेप्शन है? क्या केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन संभव नहीं है? तो दोस्तों नहीं है संभव, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो रहेंगे दोस्तों, तो इसीलिए एक्सेप्शन को अच्छे से समझ के याद रखना होता है। चलो, तो क्या है कि देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोस्तों जो नोबेल गैस होता है, ठीक है, अब नोबेल गैस क्या करते हैं भाई, नोबेल गैस के केस में अगर आप लोग देखोगे तो क्या होता है कि उसमें जो है आउटर सेल क्या होता है दोस्तों, आउटर सेल में ये कंप्लीट रहता है, ठीक है, आउटर सेल क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, आइदर डुप्लेट करके कंप्लीट होता है और दोस्तों ऑक्टेट करके कंप्लीट होता है। ये बात क्लियर हुआ? तो देखो कंप्लीट होने का मतलब क्या है, वो अगर मान लो कोई स्टेबल है, कोई स्टेबल है मतलब उसके पास बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्यों चाहेंगे भाई, उसका मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम अपना स्टेबिलिटी खो दे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाने अगर ले लेंगे तो 8 से मतलब 9 बन जाएंगे, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है, और 2 से अगर 3 बना दे तो भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो 0 होता है। ये लोग बहुत इलेक्ट्रॉन मतलब लेने का कोई इन लोगों का इच्छा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन लोग के क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो नोबेल गैस जैसे कि क्या है, नोबेल गैस को कैसे याद रखे, तो देखो हेना, नेहा और करीना जीते रहे, ठीक है, जीते रहे, हेना, नेहा और करीना जीते रहे, तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो, हम बताएं आप लोगों को बता देंगे, एक ट्रिक बना देंगे एक वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, जिन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो 0 है, क्योंकि सब में क्या है दोस्तों, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी एक्सेप्शन, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, और एक एक्सेप्शन है जिसको हम अभी आप लोगों को बताएंगे। देखो दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग ऐसा चले कि कार्बन, चलो ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ऐसा करके इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो दोस्तों अगर हम लोग सेकंड पीरियड में है कि नहीं बताओ, हम लोग सेकंड पीरियड में है, तो दोस्तों सेकंड पीरियड में अगर इधर जा रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, साइज घटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेंगे, तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ओके, ये तो बात समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं बताओ? ये देखे ऑक्सीजन के पास तो 8 प्रोटॉन है ना, लेकिन इसके पास 9 प्रोटॉन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। समझ में आया? अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन से क्या होगा, कम होगा कि नहीं बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन की अगर हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा होंगे, वो उतना ही अच्छे से मतलब तेजी के साथ जो है अच्छे से स्ट्रांगली जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया। अब दोस्तों क्या है, अभी हम लोग एक चीज देखे कि भाई अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक साइज बढ़ेंगे, और दोस्तों साइज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें दूरी बढ़ रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो देखो जितना नीचे आएंगे उतना क्या होगा, वो लेस फोर्स फील करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, राइट, न्यूक्लियस द्वारा लेस फोर्स फील करवा मतलब किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तो नॉर्मली जनरलाइज क्या कर दिए कि डाउन द ग्रुप अगर हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेंगे, सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है सर, तो किस बात की एक्सेप्शन की बात हो रहा है यहाँ पर, तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है तो आप लोग अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे
तो फ्लोरीन तो क्लोरीन के नीचे है, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज अगर छोटा है तो इसका ज्यादा होगा। तो क्या हो रहा है, क्यू जो है आपका दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच में अगर आप लोग बोलोगे तो क्या बोलोगे कि Cl का तो फिर मतलब फ्लोरीन का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर गलती मत करो आप लोग, बहुत अच्छे से सुधार लो आप लोग अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर गलती नहीं करना है, क्योंकि ये जो है फंसने वाला सवाल है। तो डेफिनेटली आप लोग को याद रखना है कि फ्लोरीन जो है दोस्तों इसका साइज जो होता है छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है, और इसका साइज जो होता है वो ग्रेटर साइज होता है, मोर होता है। अब एक चीज समझो, ये यहां पर जैसे कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ग्रेटर है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों कम होगा, यहां पर लेस है, ठीक है। अब देखो, जब एक सेल में रहता है ना, यहां पर देखो मान लो कि चलो ये यहां इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में एक रिपल्सन फील करता है कि नहीं बताओ, रिपल्सन फील करता है कि नहीं बताओ आप लोग, रिपल्सन फील करेंगे कि नहीं, मतलब एक ऑर्बिट में घूमने वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा रहेंगे, इधर रहेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। अब जो बंदा आ रहा है, जो बंदा आ रहा है ऐसा मतलब खुशी खुशी आ रहा है बाहर से कि हमको वहां बैठना है, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे भाई तुम मत आ, मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, फ्लोरीन द्वारा एक रिपल्सन फील किया जाएगा वहां पर, तो उतना अच्छे से जो है दोस्तों यहाँ पर वो बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी बैठेंगे, बट एनर्जी जो है दोस्तों रिलीज जो है यहाँ पर कम एनर्जी जो है दोस्तों यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। बट यहाँ जो है दोस्तों थोड़ा क्या है, उसका साइज एक्सपांड है, क्लोरीन का साइज थोड़ा एक्सपांड है, वो थोड़ा लार्ज साइज का है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, ठीक है, ये इसका डेंसिटी कम है, ये क्या है दोस्तों, डेंसिटी कम है, तो इसी वजह से एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पर आके बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन जो होगा दोस्तों, ये रिपल्सन कम होगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन को आप लोग याद रख लेना, और अगर कारण पूछेगा तो साइज बता देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहता है एटॉम के चारों ओर, इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने पे थोड़ा दिक्कत फील करता है और इसलिए एनर्जी कम रिलीज करते हैं। लेकिन क्लोरीन के केस में बात करें तो दोस्तों साइज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, तो आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन आके बैलेंस सेल में बैठ सकता है, यही कारण है और इसी को लिख के आना है आप लोगों को एग्जाम में। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे में हम लोग बात करेंगे कि क्या किस चीज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिविटी, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सभी लोग जो है अपना कॉपी में हेडिंग लगा लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, देखो भाई एक चीज किया है कि अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो टाइम देना होगा। ऐसे में बहुत सारा स्टूडेंट रहता है कि बस उन लोगों को बहुत जल्दी रहता है कि सर एक क्लास में कंप्लीट कर दो, उन लोगों को बस कंप्लीट करना है, सीखना नहीं है उन लोगों को कि कंप्लीट कर दो किसी भी तरह, बस हो जाएगा। अब एग्जाम में सवाल आएंगे तो ऐसा करके रहेंगे, सर इसका आंसर क्या होगा बता दो, ऐसे थोड़ी ना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, टाइम देना होगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एंड वही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझाया जा रहा है दोस्तों, तो ठोक के शेयर करो, इसको दबा के शेयर करो और दोस्त लोगों को बोलो कि यहाँ पर ऐसे सर कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, तो साथ के साथ हम लोग सर के साथ हम लोग जरूर खड़े रहेंगे। और चलो आप बढ़िया तरीके सफर को जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो जो कोई स्टूडेंट है ना मेहनती है, बस उन लोगों के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कारगर होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिन लोगों को अच्छा लगता है बस वही लोग यहाँ पर आके पढ़ेंगे बहुत धैर्य के साथ,
पेशेंस के साथ, और सबको जो है 90% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आराम से आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? मोर देन 90 भी आ सकता है अगर मेहनत थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी सवाल किसी भी डायरेक्शन किसी भी टाइप में पूछेगा तो आराम से दे देगा आंसर। चलो, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। समझ में आया मेरा बात क्या बोल रहे हैं हम? बहुत अच्छे से समझ लो। चलो, यहां पर दोस्तों हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सीखेंगे, और कैसा वेरिएशन रहेगा इसका वो भी बात करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान के चलो हम दो एटॉम्स को लिख रहे हैं। ठीक है, एक एटॉम ए है और एक एटॉम बी है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर थोड़ा बात हम बताएंगे तो ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि जब दो एटॉम्स होता है ना, तो दो एटॉम्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बॉन्ड फॉर्म होने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, कोई जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, कोई जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस गेन करके बॉन्ड बनाता है, और ऐसा करके चलता है चीजें। तो यहां पर हम लोग दो टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड जो है दोस्तों दो टाइप का पढ़ेंगे, एक है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है दोस्तों वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो मान के चलो ये जो है आपका वो मेटल है। अच्छा, यहां पर देखो आयोनिक बॉन्ड को समझा देते हैं। मान के चलो यहां पर सोडियम है और Cl है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि सोडियम मेटल है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम प्लस। और Cl जैसे कि आपका नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे ऐसे एनायन बनाएंगे। तो ये आपका कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होंगे फिर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोस्तों यहां पर होगा। राइट, अब फाइनली क्या बनेंगे, ये लोग ऐसे करके बॉन्ड्स बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। अब जितना भी दोस्तों ऐसे बनेंगे, इन लोगों को क्या बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। बस इतना ही है आप लोगों का बुक में कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनता है, कि दो एटॉम्स के बीच में जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस का जो सिलसिला है, वैसे करके जो है आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। दो अपोजिटली चार्ज आयंस बनेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में ऐसे इंटरेक्शन बनेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक कंपाउंड। तो देखो यहां पर जो है ये एटॉम है, तो एटॉम के केस में हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे, हमेशा क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन जो एनर्जी होता है ना, ये फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एटॉम्स जो मेटल एटॉम होता है, मेटल के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर नॉन मेटल की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हो रहा है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना आप लोग कि मेटल के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आपका नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात समझ में आया कि नहीं है बताओ। तो ऐसे करके आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए कि एक एटॉम रहेंगे और एक एटॉम रहेंगे, दोनों में से एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, कैटायन बनाएंगे, एनायंस जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एनायन बनाएंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और डेफिनेटली ये लोग ऐसा करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों और आयोनिक कंपाउंड्स बना लेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो ये बात तो क्लियर हो गया सर, आप आगे बढ़ते हैं। और देखो फ्रेंड्स क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे। देखो दो आदमी थे ए और बी, अब दो आदमी थे दोस्तों, एक दोनों के पास एक एक करके क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन्स इन लोग इसके पास है और बी के पास और एक इलेक्ट्रॉन्स है।
अब दोस्तों ए अकेला बॉन्ड नहीं बना सकता, बी अकेला बॉन्ड नहीं बना सकता, दोनों के बीच में एक दिन क्या हुआ, मुलाकात हुआ और दोनों ने बोला कि देखो भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन से, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन से। अब जैसे कि उन लोगों को पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उन लोग आपस में समझौता कर लिए कि देखो हम लोग एक म्यूचुअली शेयर करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेंगे और दोनों जो है उसको यूजुअली मतलब इक्वली शेयर करेंगे। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ने भी राजी हो गया और बी भी ने राजी हो गया। दोनों ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर कर दिए दोस्तों और अपना जो है बॉन्ड्स बना लिए। ठीक है, क्या हुआ कि बॉन्ड्स जो है दोस्तों बना लिए। ठीक है, ऐसा करके दोनों ने क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड्स बना लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका बॉन्ड है, ये आपका क्या है एक्चुअल में, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सब अच्छे से। ये क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ में आ रहा है, ये क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, जो एक क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये दोनों एटम्स को ये होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, मैग्नेट की तरह होल्ड करके रख रहा है दोनों 2 एटम्स को। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बना कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बना। ये क्या है दोस्तों, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये चीज बना। इसके पास और इलेक्ट्रॉन था, ये था, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना लिए। तो हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स बना, इन लोगों को बोला जाएगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जांपल के हिसाब से ले सकते हो कि Cl2 हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, ऐसे में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो है दोस्तों इस हिसाब से बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आ जाओ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। तो बहुत अच्छे से ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बनने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। ठीक है, अब देखो सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी कुछ जो है दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। अब बी में क्या हुआ, बी क्या कर दिए दोस्तों, बी कर दिए थोड़ा मतलब फ्रॉड टाइप का कर दिए। क्या फ्रॉड किए बी ने, बी देखे कि ये थोड़ा सादा सीधा है तो ये कुछ नहीं बोलेगा, तो चलो क्या करते हैं हम ना अपने तरफ ज्यादा खींच लेते इलेक्ट्रॉन्स को, और यही दोस्तों दिक्कत क्रिएट कर दिया। तो बी का नेचर थोड़ा अलग था ना ए का नेचर से, है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन से बी को ज्यादा प्यार था दोस्तों, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो बी क्या किया, अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच लिए, और ये नतीजा रहा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी के तरफ ज्यादा आ गया है। ओके, तो इसी वजह से जब ये बीच में था, कोई चार्ज नहीं था इन लोगों के ऊपर, अब इलेक्ट्रॉन्स जिधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे वहां पर नेगेटिव चीज आएंगे, तो नेगेटिव चार्ज वहां पर डेवलप होंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप होता नजर आएगा, और इस हिसाब से जो मॉलिक्यूल बनता है दोस्तों उन लोगों को बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओके, तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बट वहां पर क्या है, 2 एलिमेंट जो है, 2 एटॉम्स जो है दोस्तों वो सेम टाइप का नहीं है, दोनों के बीच में एक चीज का डिफरेंस रहता है, और उसी चीज के ऊपर ये डिस्कशन है दोस्तों कि ए और बी के बीच में अगर बात करें तो बी का ज्यादा इंटरेक्शन है, बी का ज्यादा इंटरेस्ट है, बी का ज्यादा एक्टिविटी है, किसके तरफ झुकाव है उसका ज्यादा, ना इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के तरफ, वो ज्यादा इफेक्टिवली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यही जो है दोस्तों शेयर्ड पेयर को जो अपने तरफ खींचता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बी का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोस्तों बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। बात क्लियर हुआ, बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ। तो ये चीज क्या है कि द क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन पेयर का, शेयर्ड पेयर का। ये क्या है आपका शेयर्ड पेयर है,
तो कोई एक एलिमेंट जो है, कोई एक एटॉम जो है दोस्तों, वो अपने तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो टेंडेंसी होता है इसका एक, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एक टेंडेंसी होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम, टेंडेंसी ऑफ एन एटॉम टू attract the shared pair of electron toward itself। तो दोस्तों यही चीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके पास ये पावर ज्यादा है, जिसके पास ये क्षमता ज्यादा है, वो चीज क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दिखाएंगे। एंड डेफिनेटली जो है दोस्तों यहाँ पर वही चीज हम दिख पा रहे हैं कि बी के पास जो है वो पावर ज्यादा है और इसीलिए बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। अब ऐसे करके आप लोग देख सकते हो, एक एग्जांपल के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ये सब आप लोग को बता दिए, तो देखो हर एक चीज बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर बात करेंगे एक रियल एग्जांपल की, तो H और Cl, तो दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड होना पोलर। अब दोस्तों इसको अगर इस हिसाब से देखेंगे तो H तो छोटा बच्चा है, तो क्या है कि इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, शेयर्ड पेयर ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो करेंगे दोस्तों, ये Cl अपने से ज्यादा इसका यूज करेंगे और यहाँ पर थोड़ा H के भाग में कम पड़ जाएंगे, तो ऐसे में पोलरिटी डेवलप होंगे। तो ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl जो ज्यादा है हाइड्रोजन के तुलना में। अब इसका वेरिएशन क्या होता है, देखो अगर हम लोग बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशंस क्या होंगे दोस्तों, वही काम कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर होता है, जो पुलिंग पावर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो जहां पर ज्यादा होंगे उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप वाइज एक चीज होगा और एक पीरियड वाइज होगा। तो देखो आप लोगों को एक चीज पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे, ये मान लो एक ग्रुप है, तो उसके डाउन में अगर जाएंगे, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम में अगर जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, साइज बढ़ेंगे। साइज बढ़ने के साथ साथ दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो साइज में दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो साइज बढ़ने का जो फैक्टर होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो साइज अगर बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है, ये साइज अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके दूरी बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छे से खींच नहीं पाएंगे। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस जो है दोस्तों वो अच्छे से खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियस उसका ज्यादा है, साइज ज्यादा होने से वो चीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप दोस्तों, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं है, बताओ। अब देखो अगर हम लोग पीरियड के मुताबिक चले, पीरियड के हिसाब से चले तो क्या होगा, तो एक पीरियड में कैसे चलते हैं हम लोग ना, पीरियड में शायद तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। और एक चीज क्या है कि पीरियड में साइज क्या होता है दोस्तों, घटता रहता है, ठीक है, ऐसे घटता रहता है। और एक चीज क्लियर है आप लोगों को कि साइज अगर घटेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है कि नहीं, बताओ। एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब देखो एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे सेकेंड पीरियड में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेकेंड पीरियड में बात करें तो डेफिनेटली ऐसे चलेंगे, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, लाइक दिस ऐसे चल रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो साइज धीरे धीरे इधर घटेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली क्लोरीन का जो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बात क्लियर हुआ कि नहीं है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या हो रहा है यहाँ पर, साइज इधर घट रहा है ना, साइज घटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ये न्यूक्लियस अपने तरफ ड्रैग करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा यहाँ पर।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अट्रैक्शन है, टेंडेंसी है, उसके अपने तरफ खींचने का, जो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी वो ज्यादा रहेगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होगा। ओके, क्लियर हुआ बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ओर चलते हैं, और जिसके ऊपर बात करेंगे अभी दोस्तों मेटालिक प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करने वाला है। तो सभी ने जो है क्या है हेडिंग लगा लो, ठीक है। चलो कितना हो गया टाइम, ओके ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो तो यहां पर से एक चीज याद रखना आप लोग कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है और डाउन द ग्रुप आने से घट रहा है। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दोस्तों वो आपका क्या है, लिख के रख लो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन है। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, समझ में आया। और जो नोबेल गैस होता है ना, बताया आप लोगों, उन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जीरो होता है और नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि उन लोग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींचे। ओके चलो अब मेटालिक कैरेक्टर हेडिंग लगाओ, मेटालिक कैरेक्टर हेडिंग लगाओ। देखो तो मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, मेटालिक कैरेक्टर देखो तो मेटालिक कैरेक्टर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होता है किसी का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी टू लॉस outer most cell electrons from the outermost cell, electrons from the valence cell। तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की जो कैपेसिटी होता है वो चीज यहां पर मेटालिक कैरेक्टर में दर्शाएंगे यहां पर, ठीक है। चलो तो दो चीज लेंगे आप लोग, मान लो कि आपके पास जो है दोस्तों यहां पर सोडियम एटम है, ठीक है, ये सोडियम एटम है, या तो इलेक्ट्रॉन्स है, या आपका 3 4 5 6 7 8 और ये 1 हो गया, ठीक है, ये सोडियम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देंगे, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, और ये आपका क्या बना देंगे, Na+, ठीक है, Na+ बना देंगे। समझ में आया। तो ये ही प्रॉपर्टी आपका मेटल दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होता है किसी एटॉम में वो चीज, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूसिंग नेचर भी है इन लोगों का, ये आपका क्या है, इन लोगों का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग नेचर है। ओके, क्योंकि इससे क्या करेंगे, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब देखो ये कैसे वेरी करेंगे उसको देखते हैं कि देखो एक पीरियड में अगर हम लोग जाएंगे नीचे की तरफ, मान लो ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज नीचे के चलेंगे नीचे, तो ये साइज बढ़ेगा ऐसे। तो दोस्तों क्या है कि साइज अगर बढ़ेगा तो उसी वाला चीज को दोहराओ अभी फिर से आप लोग कि साइज बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन से नहीं रहेगा उतना अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप 1 की अगर बात करें मान लो, तो सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सोडियम में भी है, पोटेशियम में भी है, रुबिडियम में भी है, ऐसे करके एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है सब में। तो यहाँ पर जो प्रभाव इसके ऊपर है, इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो वाला प्रभाव यहाँ पर थोड़ा घटती हुई नजर आएंगे कि नहीं बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। अब ये और भी दूर में है तो इसका प्रभाव और भी कम होंगे। अब तो कैपेसिटी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, अब देखो आप लोग कहां इजीली आसान तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हटाया जा रहा है, तो यहां पर जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस करने में। ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर डिफिकल्ट हो रहा है, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है यहां पर टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां आपको क्या है कि ज्यादा एनर्जी देना होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली हेल्ड है थ्रू द न्यूक्लियस। ये क्या है दोस्तों, यहां पर टाइटली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस के द्वारा जो है दोस्तों, ये न्यूक्लियस के द्वारा क्या है, ये न्यूक्लियस द्वारा आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस द्वारा ये अच्छे से हेल्ड है, यहां पर टाइटली जो है दोस्तों
हेल्ड है, इसी वजह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग रुबिडियम के केस में आए तो ये दोस्तों लूजली है, ये क्या है न लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस द्वारा, तो इसको अच्छे से मतलब आराम से क्या कर देंगे, ये लॉस कर देंगे। तो यहां जो है आपका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इसीलिए दोस्तों क्या है कि ग्रुप वाइज अगर हम लोग नीचे नामेंगे, ग्रुप वाइज अगर हम लोग नीचे चलेंगे तो क्या होगा, आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेंगे। क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगे आपका, ग्रुप वाइज अगर हम लोग नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगे। और वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ आप लोग कि अगर सर ग्रुप वाइज चलेंगे तो ऐसा होगा, पीरियड वाइज क्या होगा ना, देखो पीरियड वाइज क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके चेंज होता है, साइज ऐसे घटता रहता है। वही वाला सेम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितना आसान तरीके से हम लोग हटा पा रहे थे, ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी होंगे लॉस इलेक्ट्रॉन्स करने में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा आपका, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे कि नहीं बताओ, डिक्रीज कर जाएंगे। कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो तरीका था वो बदल गया है। वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मतलब न्यूक्लियस के पकड़ में है तो आसान तरीके से वो लोग नहीं देंगे उसको, तो डेफिनेटली मेटेलिक प्रॉपर्टी घट जाएंगे, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी तो उसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को कितना अच्छे से दे पा रहा है वही उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी है। आसान तरीके से देंगे तो आसान ही रहेंगे, आसान होगा, और डिफिकल्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली मेटेलिक प्रॉपर्टी घट जाएंगे। चलो ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो ऐसा करके मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे कम होता जाता है। ठीक है, इधर देखो आप, जैसे मान के चलो यहां पर आपका सोडियम, ठीक है, उसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम, उसके बाद आपका क्या होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये देखो नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, ये मेटल है, तो ऐसा ऐसे करके आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता हुआ जाएगा। ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आया, ये नॉन मेटल है, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ऐसे करके चलेंगे तो आप लोग देखो पूरा देख पा रहे हो, तो पूरा क्लियर है आप लोग के सामने पूरा केमिस्ट्री जो है कि इधर जो है दोस्तों लेफ्ट की तरफ जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर है, बट इधर जाएंगे तो नॉन मेटल आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है सोडियम मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, ये जो आपका क्लोरीन नॉन मेटल है, आर्गन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जो है आपका मेटलॉइड है दोस्तों। तो ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। चलो अब हम लोग आगे में चलेंगे और आपका ग्रुप वाइज क्या होता है, देखो ग्रुप वाइज नीचे के चलेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है दोस्तों बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, देखो एल्यूमिनियम, आलू, गाजर, इंट, ठेला। ठीक है, तो देखो ये नीचे की तरफ आएंगे तो मेटल, उसके बाद आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब बढ़ता हुआ क्रम में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो देखो ये कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटलॉइड्स है, आपका जर्मेनियम मेटलॉइड्स है। ठीक है, ऐसे करके टीन मेटल हो गया, लेड मेटल हो गया। तो नीचे तरफ आ रहे हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहे हैं ग्रुप वाइज, और इधर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घट जाएंगे पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट। क्लियर हुआ। अब देखो दोस्तों नॉन मेटल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा मेहनती है, जो अच्छा रिजल्ट करना चाहता है वो रहेंगे मेरे साथ, ये पूरा विश्वास है मेरा। ठीक है, और जो मतलब ऐसे ही आता है चलो भाई क्लास चल रहा है थोड़ा देख के आ जाते हैं क्या चल रहा है, ओ सर इतना इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा भाई, उससे तो अच्छा रहे थोड़ा रील्स देख ले, थोड़ा यूट्यूब में गाना सुन ले। ठीक है, ये बढ़िया रहता है, थोड़ा दोस्त को फोन कर ले, थोड़ा बात कर लेते हैं, इससे बढ़िया रहेगा। लेकिन कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों का, क्या ही होगा पता नहीं उन लोगों का। चलो भाई आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को लगे रहो ऐसा ही, चलो सीखते जाओ। तो दोस्तों पैसेंस एक बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, पैसेंस एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, वो आपके पास है तो आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। धैर्य जो है जीवन का एक पार्ट बना लो इसको। ठीक है, क्योंकि हर एक डिफिकल्ट फेज में आपको इसका सामना करना पड़ेगा दोस्तों, यही आपका
मनोबल बढ़ाएगा कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास धैर्य है, उसके आधारित हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पैसेंस है तो सब कुछ है, ठीक है। चलो तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सफर को लेके। चलो चलो, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया, नॉन मेटल यहां पर एडिंग कर दो, डाल दो नॉन मेटल। देखो अभी आप लोग क्लास 10 में हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक लाइफ का पार्ट है, उसका जो है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो तो आगे में जाके बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। कहीं पर भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, क्योंकि यहां पर जो है बोर्ड का मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अच्छे से बोर्ड्स को देना है और इसी वजह से अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड्स को देना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कैजुअली मत दो, चलो ठीक है बोर्ड से तो दे देते हैं, कोई भी मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा मत सोचो। अच्छा मार्क्स लाना है, जब रिजल्ट आएंगे तब एक गर्व होगा, माँ बाप का भी गर्व होगा कि मेरा बच्चा ये मार्क्स लेके आए हैं। वो उदाहरण दे सकते हैं आप लोगों को कि देखो ये 98 लेके आया है, तो एक आप लोग एग्जाम्पल बन जाओगे, ठीक है। स्कूल में अगर अच्छा मार्क्स आए तो आप लोगों का पिक्चर मतलब इमेज गेट के बाहर रखा जाएगी कि इसको इतना मार्क्स मिला है, 98 95 आया है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते ऐसा हो आप लोगों के साथ भी, ठीक है। देखो आप लोग अपने सीनियर्स को कि कितना अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, तो डेफिनेटली ये मौका मत गवाओ, अच्छे से मेहनत करो तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो ऐसा कमाल। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। और तो क्या है कि नॉन मेटल कैरेक्टर जस्ट मेटेलिक जो कैरेक्टर है दोस्तों उसका अपोजिट है, ठीक है, उसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है। चलो तो क्या होगा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो दोस्तों कैपेसिटी है। ओके, जैसे कि एक एटॉम है, मान लो एक एटॉम है, कोई भी एक एटॉम है, ये क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। और ये आपका कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेंगे तो आपका मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। ओके, तो वही वाला चीज हो गया, जैसे कि मान लो Cl है, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हुआ, Cl माइनस एटम आयन बना दिए। तो ऐसे ही अगर हम लोग चलेंगे कि ग्रुप वाइज एक वेरिएशन होगा और एक होगा आपका पीरियड वाइज वेरिएशन, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बोल रहे हम कि नॉर्मल बता दे रहा है कि देखो ग्रुप वाइज अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों साइज बढ़ेंगे। अब साइज बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस केस और न्यूक्लियर और आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दूरी बढ़ेंगे। साइज बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर सेल का बीच में जो दूरी है बढ़ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छे से मतलब खींच नहीं पाएंगे, तो ये साइज बढ़ने से घट जाएंगे। अर्थात अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे दोस्तों हम लोग तो क्या होगा, ये आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, समझ में आया ये चीज। अब देखो पीरियड में क्या होगा दोस्तों कि पीरियड में अगर हम लोग चलेंगे कि साइज ऐसा कम होगा और डेफिनेटली साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से मतलब उसको अपने तरफ खींच सकता है, अपने तरफ जो है दोस्तों उसको एक एफिनिटी रहेगा उसका कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग अपने तरफ खींचे, न्यूक्लियस द्वारा वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर कोई चीज जो है मूव करता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि देखो आप लोग सोडियम के केस में देख सकते हो, सोडियम मैग्नीशियम ऐसे करके चलेंगे तो एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखो सिलिकॉन फास्फोरस, ये देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इधर, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है दोस्तों बढ़ रहा है, ऐसे इस क्रम में बढ़ेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जिसके ऊपर, वो है आपका एल्कली मेटल के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ने जो है अभी हेडिंग लगा लो कि नॉन ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट और एल्कली मेटल, ठीक है। चलो ग्रुप 1 एलिमेंट और दोस्तों इन लोगों को क्या बोला जाता है,
एल्काली बोला जाता है, एल्काली मेटल्स। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है इन लोगों को लिए बताएंगे आप लोगों को कि पहला तो ये बात है ग्रुप वन में है, तो सर ठीक है ग्रुप वन में कौन कौन है, तो ग्रुप वन में भाई कौन कौन है, हेलिना के रब से फरियाद दोस्तों, रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है, क्या है, हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। तो ये दोस्तों याद रखना आप लोगों को, हेलिना मतलब हे, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, रब मतलब ये ले लो आरबी, इसका मतलब होता है रुबिडियम, और दोस्तों सीजियम मतलब सीएस, और फरियाद मतलब आपका हो गया फ्रांसियम। तो ऐसे हो गया ना, हेलिना के रब से फरियाद दोस्तों, हेलिना का रब फरियाद, रब से फरियाद कर रहे हैं हेलिना कि दोस्तों ये स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रख, मतलब रख जाए, हम लोग माइंड में बैठ जाए, ये इसका व्यवस्था कर दो दोस्तों, ये गॉड थोड़ा हम लोग को कृपा कर दो कि याद रह जाए एग्जाम के लिए, अच्छा मार्क्स आ जाए हम लोग से। तो हेलिना रब से फरियाद कर रहा है ये, ठीक है, चलो तो ये याद रह जाएंगे आप लोगों को। देखो सभी के पास जो है दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि ग्रुप वन में रहने वाला हर किसी के पास क्या होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे कि नहीं, तो ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होता है ना ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है कि नहीं बताओ। तो यहां से हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पर सब में जो है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, सब में जो है दोस्तों एक एक करके जो है एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ। अब देखो इन लोगों को एल्काली क्यों बोला जाता है ये समझ लो, क्योंकि ये लोग एल्काली बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्काली बनाते हैं। एल्काली यहां से क्या होता है बनते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्काली हो गया दोस्तों, ठीक है, मतलब पानी में क्या होते हैं ये लोग डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, कि ऑल ऐसा होता है ना कि ऑल बेसेस आर, ऐसा होता है ना कि एल्काली और बेस के लिए कंफ्यूजन होता है ना कि बेस तो सभी है, ऑल एल्काली और बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काली, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट है। तो जितना बेस है आप लोगों के पास वो पानी में डिजोल्व अगर हो रहा है तो डेफिनेटली उन लोगों को एल्काली बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एल्काली है मतलब यहाँ OH माइनस देंगे ये लोग और डिजोल्व हो जाएंगे पानी में, डिजोल्व इन वाटर, तो इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर एल्काली बना रहा है ये लोग, तो इसीलिए इन लोगों को एल्काली मेटल बोला जाता है। ओके अब देखो इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन लोगों का, और देखेंगे दोस्तों कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, बस ये पढ़ लो तो क्लियर हो गया चीजें। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये होता है आपका कलर हो गया, ठीक है, आपका सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। ओके जहां पर इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता ऐसे ऐसे करके, मतलब उससे अलग ही बात है, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, तो वो लोग हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं जहां पर नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है रिएक्शंस करने के बाद दोस्तों। बट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉर्मल देखते हैं कि कंडक्टिविटी है कि नहीं, ये लोग पानी में डिजोल्व होते हैं कि नहीं, इन लोगों का कलर कैसा है, छुरी से काटा जाता है नहीं काटा जाता, लाइक सॉफ्टनेस है कि नहीं, लाइक दिस वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना ऐसा करके कुछ कुछ है तो बता दे रहे आप लोग। तो देखो दोस्तों ये लोग क्या होता है कि पहले तो है ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं दोस्तों, क्या होता है सॉफ्ट होता है। ऐसा देखिए आप लोग कि सोडियम को नाइफ से भी काटा जाता है दोस्तों, नाइफ से भी काटा जाता है ये लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो ये लोग क्या होता है कि मेटल है तो डेफिनेटली शाइनिंग सरफेस रहेंगे इन लोगों के पास, क्या रहेंगे, शाइनिंग, शाइनिंग इन द शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग स्पेलिंग SHING, क्या होगा शाइनिंग स्पेलिंग, शाइनिंग देख लेना ठीक ही लिखे ना नहीं लिखे, शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस रहेंगे इन लोगों के पास, ठीक है। एंड दोस्तों ये लोग
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टिविटी रहेगा, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। और इन लोगों का डेंसिटी घटेंगे डाउन द ग्रुप। 4 नंबर पॉइंट अगर देखेंगे तो डेंसिटी क्या होंगे दोस्तों, घट जाएंगे। अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, शाइनिंग सरफेस होता है और छुरी से काट सकते हैं इन लोगों को, बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों, इसीलिए ये। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे दोस्तों तो इन लोगों का डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता हुआ नजर आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब देखो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आगे आएंगे तो क्या क्या देखेंगे। देखो पहला तो है ये लोग बहुत रिएक्टिव है। पहला तो बात ये है दोस्तों, ये लोग बहुत रिएक्टिव होता है, जैसे एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। जैसे सोडियम जो है दोस्तों, ये वाटर एयर के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। और क्या है, ये लोग पानी के साथ भी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। वाटर दे दो तो NaOH बना लेंगे दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएंगे यहां से। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हाइड्रोजन के साथ दोस्तों हाइड्राइड बना लेता है, ठीक है। ये लोग मेटल हाइड्राइड बना लेता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मेटल हाइड्राइड बना लेता है। और दोस्तों क्या होता है, ये लोग जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लोग सोडियम सॉल्ट भी बना लेंगे, मतलब NaCl टाइप जो सोडियम जो आपका आयोनिक सॉल्ट है दोस्तों, वो भी ये लोग बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग आयोनिक हाइड्राइड बना रहा है। आपका क्या बना रहा है, आयोनिक हाइड्राइड। ये लोग एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये लोग पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा में इन लोगों का रिएक्टिविटी देख सकते हो कि बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी है। समझ में आया कि नहीं है बताओ। ये लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे कि सोडियम ले लिए और पानी में फेंक दिए और बस बुम, ये होता है दोस्तों। मतलब ये लोग इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आग भी मतलब निकल जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन करता है। और ये दोस्तों नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर है। मतलब इसको अगर पानी में डालोगे आप लोग तो बेस फॉर्म होंगे वहां पर, मतलब आपका एल्कली फॉर्म होंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ ये चीज। ये सोडियम जो है दोस्तों, मतलब कोई भी एक मेटल्स को लेके हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आपका मेटालिक ऑक्साइड बन गया एयर के साथ रिएक्ट करके, पानी के साथ रिएक्ट करके दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना लिए, और दोस्तों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बना लिए। अब हाइड्राइड मतलब क्या होता है दोस्तों, H माइनस होता है, ठीक है। हाइड्राइड क्या मतलब क्या होता है, हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्राइड आयन, मतलब H माइनस आयन, ठीक है। तो NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड, ये भी दोस्तों आपका क्या है, एक आयन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। अब ये ऐसा सॉल्ट बना रहा है। बस इतना कुछ पढ़ लो, दैट्स एनफ फॉर यू। क्लास 10 ICSE एनफ है आप लोगों के लिए। कोई भी दिक्कत है ना, अगर मान लो कोई भी चीज आप लोग को याद नहीं रह रहा है कि सर ये याद नहीं है, फटाफट कमेंट कर दो कि ये मेरे को याद नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट किए हो। याद दिमाग में न रह जाता है, ये चीज दिमाग में रह जाता है कि ये चीज मेरा याद नहीं हो रहा है। दोस्त से पूछो, स्कूल में दोस्त से पूछो कि मेरा ये याद नहीं हो रहा है, मेरा ये याद नहीं हो रहा है, तो वही चीज आपको याद रहेंगे, ठीक है। इतना बार इतना सर्कुलेशन में आ जाएंगे कि दिमाग उसको भूल ही नहीं पाएंगे कि हाँ ये हम पूछे थे इससे सवाल, लाइक दिस, ये पूछे थे सवाल, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में हो जाता है। तो ये करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग लास्ट एकदम लास्ट में आ गए हैं। डेफिनेटली बहुत लंबा चल रहा है वीडियो, तो कोई बात नहीं, आप लोग धैर्य के साथ देखते रहो। लास्ट में हम लोग दोस्तों बात करेंगे ग्रुप 17 के बारे में। तो पानी वगैरह पी लो थोड़ा, हम भी पी लेते हैं थोड़ा पानी, ठीक है। ठीक ठाक है ना पानी, एक मिनट। तो हेडिंग लगा आप लोग, क्या हेडिंग लगाना है, ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर ग्रुप 17 में रहने वाला जो एलिमेंट है दोस्तों, इन लोगों को बोला जाता है हेलोजन। क्या बोला जाता है, हेलोजन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो मतलब क्या होता है, हेलो मतलब वो वाला हेलो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। हेलो का मतलब है दोस्तों, हेलो का मतलब है यहाँ पर कि सॉल्ट, ठीक है। हेलो का मतलब क्या है ना, हेलो का मतलब है यहाँ पर सॉल्ट, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है दोस्तों, सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इन लोगों को बोला जाता है हेलोफॉर्म। तो हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मन, मतलब जहां से सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्मन, ओके। चलो तो यहाँ पर ग्रुप 17 में रहने वाला क्या है, सभी के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या रहेंगे, इन लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेंगे। अब बताओ, आप लोग तो सीख गए, इसमें माहिर हो गया हो, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो कि 17 है मतलब 7 होंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया। अब कौन कौन है तो ये बता दिए थे आप लोगों को कि कौन कौन रहेंगे यहाँ पर, क्या रहेंगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन कहाँ है, ऑस्ट्रिया में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास बिरयानी मिलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे बस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो, पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखेंगे इन लोगों का तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि ये लोग आपका क्या है, ये लोग गैसियस में है, जैसे कि ये गैस है आपका, ये गैस है, ये गैस है आपका। अब देखो दोस्तों ये रेड लिक्विड है, मतलब रेड कलर का यहाँ पर लिक्विड मिलेंगे आपको, और ये सॉलिड बन जाएंगे, ये भी आपका सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों ये लोग गैस फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में ऐसे बियर है, और ऐसे आयोडीन की बात करें तो ये क्रिस्टल सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये क्रिस्टल सॉलिड है, तो यहाँ हम लोग ऐसा देख सकते हैं। और इसका जो है दोस्तों ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब सबका दोस्तों कलर होता है, सबका कलर होता है, जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करें दोस्तों येलो होता है, क्लोरीन की बात करें तो आपका क्या होगा, क्लोरीन की अगर बात करें दोस्तों ये जो है आपका, इसका कलर क्या होगा ना, इसका येलो कलर होंगे। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, येलो। अच्छा, इसका सर कलर क्या होगा, ग्रीन। देखो ऐसे नहीं लिख रहे, याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम सवाल में आता है ये सब। तो ये आपका रेड कलर का होता है, ये होता है आपका वायलेट कलर का। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये आपका वायलेट कलर का होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। तो इसे हर एक कलर है, येलो कलरफुल है। ठीक है, येलो कलरफुल है, तो ये चीज समझ लो यहां से। अब दोस्तों कलर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो ये लोग का कलर पता चल गया। अब देखो ये लोग अच्छा सा कंडक्ट नहीं कर पाते, तो बेड कंडक्टर है ये लोग, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेड कंडक्टर्स है ये लोग, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों क्या है, ये लोग अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये लोग नॉन मेटल है। ओके, समझ में आया सर। अच्छा, और क्या चीज है कि देखो ये लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग बेड कंडक्टर है। हाँ, इन लोगों का जो है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे हम लोग तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएंगे अर्थात डाउन द ग्रुप बढ़ जाएंगे, डाउन द ग्रुप जो है दोस्तों बढ़ जाएंगे, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखना होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, और एक बात तो सर आप वही बताए कि देखो ये लोग जो होता है ना दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे कि फ्लोरीन की बात करें तो ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन लोग क्या है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो है दोस्तों ये लोग रिएक्टिविटी के ऊपर अगर चर्चा करें हम लोग तो रिएक्टिविटी इन लोग कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया, अब दोस्तों बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, चलो तो देखो ये लोग का रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी इन लोगों का, जैसे फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद दोस्तों क्लोरीन का होता है, देन बियर का होता है, देन आयोडीन, ऐसा करके मतलब घटता हुआ क्रम में जाएंगे। तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट जो है जो रिएक्टिव यहाँ पर दिखाएंगे, और ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आया। तो इसको मतलब इसके ऊपर बेस करके क्या सवाल आ सकता है सर, देखो यहां से आपको सवाल पूछेगा ऐसे कि बताओ इसका रिएक्शंस क्या होंगे, इसका रिएक्शंस क्या होगा। तो डेफिनेटली ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन का क्या रिएक्शंस हो गए, जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप लोग कि Cl जो है ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन के हिसाब से, तो आयोडीन यहाँ पर I- में है, तो क्लोरीन जो है दोस्तों ये लोग क्या करते हैं ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं ये लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है इन लोगों का इसी क्रम में जो है रहता है। ओके, तो ऑक्सीडाइज कर देना मतलब क्या कर देना, उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेना, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या कर देना इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या करेंगे आयोडीन से, क्या करेंगे दोस्तों आयोडीन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे वो गेन कर लेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे, और यही होता है दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसका इलेक्ट्रॉन्स खींचने का प्रॉपर्टी ज्यादा होता है किसी
एनायन से और किसी न्यूट्रल एटम से भी हो सकता है, तो उसका आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा होता है। तो देख सकते हो आप लोग कि क्लोरीन का आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयोडीन। सो आयोडीन को ये लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब देखो दोस्तों, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है कि आयोडीन क्या हो जाएंगे, जीरो स्टेट में चले जाएंगे, ये एलिमेंटल फॉर्म में चले जाएंगे, I2 बना लेंगे और यहाँ दोस्तों बन जाएंगे KCl। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिए ये चीज कि कैसे कैसे रिएक्शंस होता है। अब और भी क्या चीज है, जैसे कि देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस हिसाब से देख सकते हो कि FeCl2 है, मान के चलो आपके पास FeCl2 है, और क्या कर रहा है यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन करके ये Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ये अलग कंपाउंड बना लेंगे, FeCl3 बन जाएंगे। आपको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कि आपको ऐसे सवाल आया एग्जाम में कि Ki नहीं देके यहाँ पर Br2 दिया, तो क्या नहीं हो पाएगा आप लोगों से? आराम से कर लोगे कि देखो Br भी तो सर आयोडीन के आगे में है, अर्थात आयोडीन से तो ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका KBr बन जाएंगे, ऐसा करके होगा चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टी है इन लोगों का। तो देखो हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में रिएक्शंस होने के बाद ये लोग हाइड्रोजन हैलाइड बना लेते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे, अगर इन लोगों को बहुत अंधेरा घर में रख दोगे, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट रख दोगे तो रिएक्शंस नहीं करेंगे। बट इन लोग अगर ओपन एयर, ओपन सनलाइट में लेके आओगे दोस्तों, ओपन सनलाइट में, तो बहुत तेजी के साथ ये लोग रिएक्शंस कर जाएंगे। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये लोग बहुत अच्छे से रिएक्शंस करके ये हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे, HCl बना देंगे। अगर हम लोग बात करें H2 प्लस Br2, तो ये क्या रिएक्शंस बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? नो, ये बनाएंगे आपका HBr। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा रिएक्शंस जो है ये लोग कर रहा है डेफिनेटली। अब देखो ये लोग आयनिक कंपाउंड्स भी बना लेते हैं, ये लोग क्या करता है, आयनिक कंपाउंड्स भी बना लेता है। जैसे कि हम लोग अभी देखे कि NaCl बनाए तो आयनिक कंपाउंड्स भी बन जाता है, इन लोग आयनिक कंपाउंड्स भी बना लेते हैं दोस्तों, आयनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म कर लेता है। जैसे क्या है जी, Na+Cl2, तो ये दो आपका है, ये आपका सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, ऐसा करके चल रहा है चीजें। ठीक है, ये जो है आपका आयनिक कंपाउंड्स बना लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारा आपका ये देख सकते हो आप लोग की कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग फास्फोरस के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शंस करें, अगर हम लोग फास्फोरस के साथ रिएक्शंस करें क्लोरीन का, तो क्या होगा, यहाँ पर PCl5 बनाते हैं ये लोग, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये लोग कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाएंगे। समझ में आया? कोवेलेंट कंपाउंड भी क्या होगा, बना सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? अब देखो दोस्तों ऐसा ही है और भी बहुत सारा, मतलब जो है ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। NaCl हो गया, लाइक Mg के साथ अगर Cl2 का रिएक्शन करें तो MgCl2 बनेंगे। ऐसे ढेर सारा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाला चीज होंगे कि एक मेटल रहेंगे, एक नॉन मेटल रहेंगे, मेटल रहेंगे, नॉन मेटल रहेंगे, और यहाँ पर आयोनिक इंटरेक्शन होंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को सारा चीज कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए दोस्तों, और लगभग जो है वीडियो 1.5 घंटा के आसपास हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जिसने भी वीडियो को पूरा देखे हो, समझे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो और नोट भी लिख लिए हो। तो ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों के पास इतना मतलब धैर्य था, पेशेंस था, वो लोग डेफिनेटली लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइस। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों का नेक्स्ट जो भी बोर्ड का सवाल आया है ना, उसको थोड़ा बहुत 2-4 सवाल कर लेंगे, तो आप लोगों का और भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि सर यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और उसके ऊपर बेस करके हम लोग आसानी से
बहुत इजीली जो है बोर्ड पे आने वाला सवाल को कर पा रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसका टेंशन खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, बोर्ड का जो भी प्रीवियस ईयर में आएंगे और आने वाला है, इस हिसाब से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब, और इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए उन लोगों को बोलो कि यहाँ पर जो है एक स्वीट फैमिली है, इसका मेंबर बन जाओ, अच्छे से पढ़ाई होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और भी बहुत सारा चीज। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं आज यहीं पर, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।